Today, Women Media Center is excited to bring you an exclusive interview and conversation with supremely talented Nadia Hussain, who is not just a model, but an actress and an entrepreneur. Nadia tells us how beautifully she is living this journey of enthusiasm, passion, motivation, and courage. Because there is nothing that women cannot accomplish. Okay, so Nadia, first of all, thank you very much for taking time for us. जैसा कि हम जानते हैं, you are a multi-talented woman and who is playing so many roles in real life and very meaningfully perhaps. So, if we just, अगर हम इस conversation को शुरू करें by just knowing a bit about your career, which you started at the age of 19 after your A-levels, and then by occupation you are a dentist as well, and अब आपका अपना एक salon है, and also you run a makeup brand by the name of Blink by Nadia. So I think all ये सारी चीज़ें इतनी inspirational और motivational sound करती हैं. But with this, I also have a question. Don't you think it is difficult in Pakistani culture for women to have it all? Yes, it is. Because when I deal with women in my salon, तो फिर मुझे पता लगता है कि किस किस्म के backgrounds से लोग आते हैं और उनको किस किस किस्म की मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है and the lack of support. I mean, you know, that is the biggest issue, that they actually don't have the support from their husbands or from their fathers or from their in-laws or, you know, anybody. I mean, it's very difficult and I don't understand why, you know, like to put women in a box and, you know, say कि जी बस यही है तुम्हारा काम और उससे बढ़कर और कुछ नहीं करना, you know, like it's really disturbing. Yeah, if we just talk about modeling field and then we see कि जी वो victims होते हैं severe depression के and they have this, you know, they face fallback, तो उन ख़वातीन के लिए आपका कोई suggestion जो modeling को एक lifelong goal समझते हैं या उसको इतना fascinate करते हैं, because nowadays there are girls who like are ready to put up, you know, all of their efforts just to be there. So you have been through that, so what is your advice for them? Okay, I mean, I have always believed and I do still tell the girls and people in the industry that modeling particularly has a very short shelf life. तो आपको diversify करना है अपने आप को. आप चाहे hosting में आ जाएं, आप चाहे production में आ जाएं, आप चाहे behind the camera चले जाएं, आप acting में आ जाएं और ये करना ज़रूरी होता है फिर. Because there is no, I mean, after a certain time there is no more growth in the modeling industry. तो उस पॉइंट पे आके वो एक ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है, you know, and then that is the time when, you know, models start becoming really, you know, like, I mean, desperate for the same kind of fame. And before that time comes, you know, that is the actual time to make that decision to move on. And that was my decision at that particular time, that I needed to diversify and I needed to start a business. That is when I got the place that I wanted to start my business. The place is presently my Clifton Salon branch. लेकिन वो जगह इतनी बड़ी थी कि फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस जगह के साथ मैं क्या करूं, and I didn't want to let go of the location because it was such a fantastic location. For me personally, location really mattered for a business. So then my husband was the one who said कि फिर salon खोल लो, and I was like, salon, like I don't know if I can run a salon, but फिर किया. नादिया, एक टर्म होती है from runway, like from backstage to runway, right? तो मतलब ये दोनों spaces कितनी different हैं? I mean, if you just say कि यार equally loaded है with biasness, politics, चाहे वो fashion designers की तरफ से हो, makeup artists की तरफ से हो, directors की तरफ से हो, या कहीं ना कहीं you think यार transparency है या होती है, मतलब because एक होता है ना कि what we see on runway, it's entirely different, and backstage it's entirely different. So, you know, लेकिन अब I have heard people saying कि नहीं बेहतर हैं चीज़ें, you know, थोड़ी transparent हैं, मतलब जो लड़कियाँ young लड़कियाँ आ रही हैं, they are usually married और मतलब their couple shows होते हैं, तो चीज़ें वैसी नहीं थी और अब ऐसी हैं, तो कितना differ करते हैं आपस में दोनों sides? Backstage में अगर आपकी, again, you know, if you're talking about from the point of view of favoritism and things like that, कि आप सिर्फ उसी को push करें, you know, कि जो आप चाहते हैं, लेकिन अब जो है because our, you know, like platforms have increased so much, पहले जो है it was the power of print media, ठीक है, now it is the power of social media, and social media is in your own hands.
You are the king of your own platform. बिकॉज पहले प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में जो मोनोपलीज थी वो थी और वो बहुत अरसे तक रही, मोनोपलीज रही, एंड वी हैव सीन मोनोपलीज ब्रेकिंग एंड क्रम्बलिंग एंड पीपल हु आउट ऑफ नोवेयर दे आर ह्यूज नाउ. वो कहाँ से आए, वो कौन थे, वो कहाँ थे, इससे पहले भी तो वो थे. लेकिन अब उससे पहले जो है, जो लोग जो दिखाना चाहते थे ना प्रिंट में, वो वही दिखाते थे जो वो खुद दिखाना चाहते थे. जो मोनोपोली जो थी, वो जो बरकरार थी, वो प्रिंट मीडिया में थी. अब वो सब चीज़ ख़त्म हो गई है. इफ़ यू आर वर्थ इट, be it as a designer, be it as a makeup artist, be it as a model, be it as an actor, be it as, you know, anybody, as a photographer, anybody, I mean anybody, if you have anything to show on social media, and if you have that you know like the following, तो आपकी automatically जो है वो आप popular बन जाते हैं. आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. So Nadia, there is this word showstopper, which sounds extremely fascinating and inspirational for many men and women. I want to know how beautiful and difficult it is to get there. And मतलब वो जो feel थी, लोग बोलते हैं बहुत addicting होती है, and you know the moment especially. And तो आपने जो उसका impact था उसको मतलब कैसे rationalize किया या balance करा अपनी sanity पे, एक normal life पे नहीं आने दिया. And because it is said कि जी वो एक peak होती है career की, but as you have already mentioned earlier that it was not your, you know, all time goals, but एक experience वो क्या था, you know, how did you feel at the moment? So you know, for me, when I started modeling, उस वक्त तो कोई showstopper का कोई, you know, like concept नहीं था. It started kind of becoming a bit more important once the actors started coming as showstoppers, you know, कि जब अब models के अलावा वो और लोग जो हैं वो आने लगे as the actual main, you know, like closing. कि closing जो है वो फिर हम इस actor को या इस couple को या इसको जो है वो हम देंगे. फिर जो है वो एक you know like होने लगा कि अच्छा यार, I mean अगर कोई फिर नहीं, कोई किसी एक्टर को या किसी यू नो लाइक फिल्म स्टार को नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर क्या करे, फिर वहाँ मॉडल्स में से ही जो है वो कोई ना कोई शो स्टॉपर बनती थी. तो फिर वो एक यू नो लाइक कि अच्छा शो स्टॉपर का जो आउटफिट है वो सबसे भारी है और शो स्टॉपर का ये जो है वो सबसे ये है और उसका ओवर द टॉप किस्म की उसकी लुक होगी या उसका ये होगा वो होगा. देयर वर अ कप यू नो लाइक डिज़ाइनर्स हु रियली यू नो लाइक हैड, मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया, बट इट वॉज नॉट समथिंग that every designer did, you know, like I mean it was like the entire collection was there, and then there was one special outfit which was part of the collection, which was not really something कि जो बहुत ही कोई मुख्तलिफ सी चीज़ हो, and then at the end of it, you know, everybody would come together and you know like take the last walk. But उससे पहले जो है जब ये concept था ही नहीं, तो हम लोग सब बड़े रिलैक्स्ड होते थे, मतलब कि ऐसा नहीं था. एंड बिकॉज एक्चुअली आई हैड ऑलरेडी बिन देयर डन दैट काइंड ऑफ अ थिंग ऑलरेडी. मुझे मैं हाले 10 साल से तो ज़्यादा हो ही चुके थे इस इंडस्ट्री में, तो मैं तो खुद मतलब मैं कहती थी कि यार करना है तो कर ले, डजंट मैटर. फॉर मी आई हैव बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 10-12 years. इफ यू आर दैट डेस्परेट टू बी द शो स्टॉपर, डू इट. बिकॉज फॉर मी आई यूज्ड टू फील दैट यू नो व्हाटएवर आउटफिट आई एम वेयरिंग, आई नीड टू make it look the best. अच्छा, recently Prime Minister Imran Khan, I don't know if you've heard about it, कि उन्होंने एक statement पास किया था कि जो we have increased number of rape cases probably because जिस तरह ख़वातीन dress up होती हैं. I mean, what's your take on that? I mean, it's absolutely ridiculous. I mean, it's absolutely unbelievably. Even yesterday, I did a television program के ऊपर मैंने एक बीपर दिया था जिसके अंदर दो जो है वो मौलवी साहब बैठे हुए थे. I mean, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि एक इस्लामिक या शरई पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो औरत का जो पहनना ओढ़ना जो भी है वो है या नहीं होना चाहिए, वो तो 100% होना चाहिए. ये कोई इस चीज़ को निगेट कर ही नहीं रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि जी वो नहीं होना चाहिए. लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो ये है कि आप कपड़ा जो लिबास है उसका एक्सक्यूज बना के आप एक क्रिमिनल की क्राइम को आप एक जस्टिफाई कर रहे हैं. ये तो कहीं पे भी आप मतलब कि आप
अब औरतों का तो बल्कि उन औरतों का जो कि जिन्होंने जैसे लिबास पहने हैं उन औरतों का तो बल्कि शायद कम रेप हो रहा है, और जो बच्चियां इनफैक्ट जो 6 साल की बच्चियां, 8 साल की बच्चियां, 10 साल की बच्चियां जिन्होंने पूरे पूरे कपड़े पहने हुए हैं, मुर्दा औरतों की क्या रेप हो रहा है, अस्पतालों में रेप हो रहा है, जो बच्चियां एडमिट हुई हुई हैं, लड़कियों पे लाइक राह चलते जो हैं वो बच्चियां जिन्होंने फुल कपड़े पहने हुए हैं उनको राह चलते मोटरसाइकिलिस्ट, मतलब ये तो हमने खुद अब वीडियोस देखी हैं कि ऐसे करके ग्रोप कर लिया। व्हाट इज दैट? उन्होंने कौन से ऐसे कपड़े पहने हैं, उन्होंने क्या पहना है कि जो उनके ऊपर ये हरासमेंट हो रही है? अब अगर हम इस चीज की बात करते हैं कि वो ही जो आदमी है वो ऐसे कम लिबास वाली औरतों से जो है वो उनको देख के वो एक्साइट हो जाते हैं, एंड इट लाइक इंक्रीजेस देयर लाइक फ्रस्ट्रेशंस, इट डजंट मीन दैट इट इज जस्टिफाइड कि आप फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऐसे उतारे। पर इट इज नॉट इवन अबाउट फ्रस्ट्रेशन, इट इज अबाउट अ पावर डायनामिक, लाइक व्हेन वी सी मेन हु आर रेपिंग women, it is the ones who are closer to you, who they know कि वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो उनके ऊपर एक पावर डायनामिक आ जाता है। यस, गैंग रेप इज समथिंग डिफरेंट, अब वो जो अनफॉर्चुनेट जो गुजरांवाला वाली जो औरत थी उसने भी क्या पहना हुआ था उसने, कि लिबास में उसका क्या उसका जो है वो जस्टिफिकेशन थी? वो एक 2 बच्चों की माँ थी, उसके बच्चे भी साथ में थे, मतलब आपने एक माँ तक को नहीं छोड़ा, and then the other justification was कि जी ये निकली क्यों, रात में क्यों निकली? अरे भाई आपका मुल्क ही जो है वो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस मुल्क इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। अच्छा नादिर, वी सी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो उन्होंने सेट करे हैं, उसमें 4 सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी एंड हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। इनको फोकस किया जाता है कि जी इन 4 सेक्टर्स में जेंडर पैरिटी होनी चाहिए अगर हमें गोल्स अटेन करने हैं। सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है वो इट इज़ मतलब एक उतना कंट्रीब्यूट कर रही है एज मच एज इट शुड टू दी पाकिस्तान इकोनॉमी? बिकॉज अब एक इंटरनेशनल रिकग्निशन आई है ब्रांड्स की, दैट वी सी कि बाहर UK, कनाडा, US में बाय बाय नेम पीपल से कि जी हमें इस ब्रांड का कपड़े चाहिए, शादी हो रही है इस ब्रांड के चाहिए। ये पहले नहीं था, 10-11-12 साल पहले इट वाज़न्ट देयर। देखिए, आई वुडंट से फैशन, या fashion is just a part of our garment industry. So yes, the garment industry in itself has a huge impact on our economy. आप इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ इतने बड़े रिटेलर्स हैं, इतने बड़े बड़े उनके स्टोर्स हैं, और हर शहर में बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और कोई और नया ब्रांड आता है तो उनको भी उनके लिए भी मार्केट है, उनको भी जगह मिल जाती है। So of course our giants have been there, and our giants are still there, and the giants are increasing, which is great. So our fashion industry is part of that garment industry, कि जिसके अंदर हम जो हैं वो बजाय ये कि जो बिकता है वो वही सिंपल कुर्ती ही बिकती है, वही सिंपल आपकी या तो शलवार बिकेगी या लंबी पैंट बिकेगी, या थोड़ी सी पैंट कपरी बन जाएगी, कभी पैंट जो है वो आपकी बेल बॉटम बन जाएगी, या कभी पैंट जो है वो कोई किसी लाइक कोई वो ट्यूलिप शलवार बन जाएगी, या कोई ऐसा, बस बहुत ही मिनिमल किस्म की वेरिएशंस होती हैं। एज फार एज कुर्तीज आर कंसर्न्ड, इट रिमेन्स अ स्टैंडर्ड, but it doesn't move from that. So it's like in order to kind of create some level of excitement, some variation, some like एक आपका दिमाग जो है ना जब थोड़ा सा चलता है, आपको जो है ना आप एक create करते हो, again it's like an art form, it's a creation, it's something that you are doing for your own sake. That is what designers do then when they are showcasing their collections for fashion shows. वो बेचते नहीं है वो कपड़े, उन्हीं कपड़ों में वेरिएशंस करके वही कपड़े बिकते हैं। अगर ब्राइडल है और अगर उसने जो है ना ब्राइडल के बहुत ही कोई आउटलैंडिश किस्म का उसका कोई एक पैटर्न उसने बनाया है, या तो उसकी टॉप का या लोअर का, वो फिर इवेंचुअली जब उसको बेचना होता है क्लाइंट को, वो क्लाइंट को वही चीज़ एज इट इज़ तो नहीं बेचता ना, वो बेचते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है ये एम्ब्रॉयडरी है, इसको इस तरीके से जो है वो हम आपके लिहाज से इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन दैट एस्थेटिक इज समथिंग दैट दे सेल, दैट कट्स जो होते हैं वो कट्स अपने बेचते हैं। अब जो कोई फैशनेबल औरत होगी वो शायद कट्स वाली चीज़ पहने, जो आपकी नॉर्मल आम औरत है जो उसको नॉर्मल किस्म के कपड़े चाहिए वो उसको वही 3 पीस लॉन का जोड़ा चाहिए, जो अगर लॉन का जोड़ा नहीं पहनती है वो वही अपनी कुर्ती पहनेगी।
because that is standard. अच्छा, do you think कि फैशन इंडस्ट्री में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो एक ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर फील्ड एंड हर सेक्टर में भी सी की ये है, एंड अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी दैट इज़ अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, तो उसमें पाकिस्तान हैज़ बिन रैंक्ड 153rd आउट ऑफ 156 कंट्रीज़, तो इट्स लाइक दो स्पॉट्स और नीचे आ गया पिछले साल से, तो इट्स लाइक गोइंग वर्स. सो डू यू थिंक कि इफ़ यू लुक बैक अराउंड लाइक अ डेकेड अगो, तो वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं या वैसी हैं, या you think it's just like not going to change? Well, actually, honestly, in the beginning, it was very, very female oriented. Males का तो हर दफ़ा males जो थे वो male models मुफ्त में काम करते थे, और female dominated था fashion industry. Fashion even today is female dominated, but the showbiz industry, अगर showbiz को देखा जाए overall, film हो गया, drama हो गया, you know, that is male dominated. But fashion is the only field that is female dominated. You know, like females को ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं, females को ही ज़्यादा काम मिलता है, males होते हैं वो एक props की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, and that is something that one has felt kind of like, you know, कि अच्छा चलो यार शुक्र है कि कोई ना कोई जो है ना वो इंडस्ट्री फीमेल ओरिएंटेड है. अब जो है वो मेल मॉडल्स ने भी अपना, you know, they have made their mark and they have kind of fought for a good pay and for, if not an equal pay, but yeah, there are some male models who get paid really well.